yeah, in the future course of action, I have to make my career and I have to achieve the goals set by me, my family, as well as my near and dears. So you people have to, be attentive enough for your study enough, and you will have to focus on your destinations, your goals, your objectives. Because 10th class, it will, after passing the 10th standard, you will have the ample of the opportunities to pursue your career in the different arenas. Some of the guys would be aspiring for a career in the engineering sector, some would be aspiring to have the career in the medical side also, and some would be aspiring to be the professionals in the corporate arena. So I would like to suggest you people that whatever the dream you people have in your mind, what are the objectives that you have set for your career also. So this is my message, and I just want to convey here to one and all that just give the hard work to your study. Be attentive enough and just be strong enough also for your career goals. And the teachers, whoever they are teaching to you also, they are for your well-being. And I would say that apart from the education, apart from the curriculum, you people have to make yourself, you have to evolve a skill in yourself also, and that is officer life practice. Once you focus on this goal that I have to be officer in the future, you have to start from right now also. If you want to be a professional, if you want to be officer, then some certain qualities are required, like officer like. The way of talking, the way of behaving, the way of handling the people, the kind of the pressure people can handle. Okay, the kind of environment that you can create, and it should be the mesmerized one also. So, okay, I'm not going to take much more time from you people also, since your class was also going on. So I would say that again in future also I will be here, because I was not prepared enough that okay, I have to be in the class and I have to speak to people, I have to confront you guys also. Because I have also been the government school students, and we used to get the time also, but we thought that okay, if we want to get something out of the life, then we have to be like that, and we have to go for the things set by our families for ourselves. Okay? Yes, sir. So you guys can ask me anything, whatever you want to have in your mind, or if you want to ask any query, so I'm here to give the answer of that query put by you people. You can. I'm not like English background. मैं कोई English background का बच्चा नहीं हूँ. ना ही कोई हाई-फाई स्कूल्स के पढ़े हुए बच्चे, हम सरकारी स्कूल्स में पढ़े हुए हैं अपने टाइम के दौरान. सो यहाँ कोई मैं बड़ी बातें नहीं कर सकता कि मैं बहुत अच्छे बैकग्राउंड से हूँ या मैं बहुत पढ़े लिखे बैकग्राउंड से हूँ. बहुत पेरेंट्स थे बड़े इलिटेट, वो दोनों ही इलिटेट रहे हैं, और हम गाँव के लोग हैं, हम लोग समझते हो ना. और गाँव के बारे में मैं एक बात हमेशा बताना चाहता हूँ कि जो इतिहास रचते हैं वो गाँव वाले रचते हैं ज़्यादातर. जो या बहुत जबरदस्त होते हैं. मैं गाँव वालों को मजबूत पर्सनैलिटी क्यों मानता हूँ, एक इसके लॉजिक होता है, क्योंकि जो जिस टाइप के इन्वायरमेंट में आप लोग ग्रो अप करते हैं, जो एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड आपको मिलता है एक तरीके से, जो कठिनाइयाँ आपको मिलती है, जो स्ट्रगल्स आपको विरासत में मिलता है. अगर आपको जिंदगी में कुछ भी अचीव करना है, तो जब तक आप स्ट्रगल नहीं करोगे, जब तक आप संघर्ष नहीं करोगे, तब तक आप मेहनत नहीं करोगे उस लेवल की. ठीक है. और जो सफल लोग, जो एक तरीके से जो शहर में देखा होगा आपने, रेशो कम मिलेगा आपको, कारण कि उनको आरामदायक जिंदगी मिलती है, सब कुछ पकाया मिलता है, बिल्कुल कोजी एंड कंफर्टेबल होते हैं वो लोग. हाँ, तो वो जो जिनको सारी चीजें बिल्कुल एक डिमांड पे मिल जाती हैं, जो बिल्कुल आरामदायक जिंदगी जीते हैं, जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आना चाहते, वो लोग प्रयास भी नहीं करते, उनसे प्रयास भी नहीं होते हैं. इसलिए मैं गाँव वालों को ज्यादा स्ट्रॉन्ग मानता हूँ कि वो लोग जो है वो संघर्ष के साथ बड़े होते हैं. संघर्ष को उन्होंने देखा होता है, उन्होंने कमियां देखी होती हैं. किसी घर में पैसे नहीं है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें चल रही है, किसी के घर में समस्याएं हैं बहुत ज़्यादा, तो वहाँ से जो बच्चा निकलता है, आप इतिहास उठा करके दे सकते हैं. आपकी संस्था भी है जो भी है ये कोचिंग देती है, तो वहाँ पर जो बच्चे आजकल जो जॉब लग रहे हैं, जो काम या हो रहे हैं, जो गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर पा रहे हैं, उनका बैकग्राउंड देखिएगा आप लोग, कहाँ से निकल के आए वो लोग. हम्बल बैकग्राउंड से हैं वो लोग, बिल्कुल गरीब घरों के बच्चे हैं वो लोग, और वही इतिहास रचते हैं. तो इसलिए मैं मानता हूँ कि आप लोग सारे बैकग्राउंड के यहाँ पर हैं, और मेरा यहाँ पर कोई और मकसद नहीं था कि इंग्लिश में इंटरेक्शन करने का. मेरा मकसद सिर्फ ये था आप लोगों से कि दैट आई एम ऑल्सो फ्रॉम अ विलेज साइड. I am also from a village, and I told you people little while earlier that okay, my both the parents, they are illiterate enough, they are not educated, but even then हमने फोकस किया, हमने माइंड में टारगेट था कि दैट इंग्लिश की बात लगानी है भैया, इंग्लिश के पीछे पढ़ना है. एक सरकारी स्कूल के अंदर रहते हुए हम लोगों ने उसको टारगेट अचीव करके, और बाद में जाकर के बड़ा सारी चीज़ें नॉर्मल हो चुकी थी. ठीक है. तो मैं आपसे यही चाहता हूँ कि
अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर वर्क करो। कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ से पढ़ जाओगे, मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे आप लोगों के, जॉब भी चलो लग गए आप कंपटीशन के बेस पे, लेकिन जॉब लगने के बाद मैं एक बात बोलता हूँ, हमेशा स्टार्टिंग से मेरा एक वक्तव्य रहा है कि जॉब जितना मुश्किल है मिलना, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल होता है उस जॉब को कर पाना। जब सिस्टम में आते हैं तो वहां पर हाँ उस जो स्किल चाहिए होती है आप लोगों को, उस स्किल जो कम्युनिकेशन की स्किल होती है, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। आपके पास जो स्किल होनी चाहिए कि आपको अपने आप को, हम एक प्रोडक्ट होते हैं, वी आर लाइक अ प्रोडक्ट। अगर कॉमर्स की भाषा में, अगर आप एमबीए या मैनेजमेंट की भाषा में समझोगे, वी ऑल आर प्रोडक्ट, हम सब प्रोडक्ट होते हैं। आप मोबाइल खरीदने जाते हैं, आप शर्ट खरीदने के लिए जाते हैं, आप कोई भी चीज खरीदने के लिए जाते हैं, शूज खरीदने के लिए जाते हैं, तो मार्केट में जब निकलते हैं दुकान बेस्ट ढूंढते हैं आप लोग। उस दुकान के अंदर जो सामान रखा है उसमें से क्या बोलते हैं कि मुझे ब्रांडेड चाहिए, मुझे अच्छी चीज चाहिए, ढूंढते हैं ना, बेस्ट चाहिए आपको। आपको केले लेने हैं तो भी बेस्ट ढूंढते हैं, निकालते हैं। इवन आपने कभी सब्जी खरीदी होगी, आपको आलू खरीदने हैं, टमाटर खरीदने हैं, तो आप बेस्ट को निकालते हैं। तो सेम फॉर्मूला भैया इस दुनिया में भी हमारे ऊपर इंप्लीमेंट होता है। वो क्या होता है, कॉमर्स की भाषा में, मैनेजमेंट की भाषा में, वी आर लाइक ए प्रोडक्ट, हम एक प्रोडक्ट की तरह होते हैं। जैसे प्रोडक्ट को हम चूज करते हैं ना अपने लिए, हमें हमेशा ही अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए होता है। उसी तरीके से जब हमारे सिलेक्शन की बात आती है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर की बात करे, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की बात करे, तो वो बेस्ट को चूज करते हैं, बेस्ट। जैसे केले आपने बेस्ट लिए थे, टमाटर आपने बेस्ट लिए थे, सेब आपने बेस्ट लिए, शूज आपने, बुक्स आपने, कपड़े आपने बेस्ट लिए थे। इवन मोबाइल भी जाते हैं तो मोबाइल के लिए खरीदते हैं तो बेस्ट खरीदते हैं आप लोग। तो उसी तरीके से वो बेस्ट को उठाते हैं, बाकी जो बेस्ट नहीं होते हैं, जो बेस्ट से कम होते हैं, वो वही रह जाते हैं। तो एक प्रोडक्ट है हम लोग, वी आर लाइक ए प्रोडक्ट। अगर आपको अपनी वैल्यू चाहिए तो एक दुनिया में कॉन्सेप्ट चलता है बड़ा अच्छा, कॉन्सेप्ट का नाम है अट्रैक्टिव, ऑसम एंड सेलेबल। अट्रैक्टिव, ऑसम एंड सेलेबल, ये हमारी जिंदगी में इंप्लीमेंट होता है। किस तरीके से इंप्लीमेंट होता है? अब यहाँ पर अट्रैक्टिव डजंट मीन कि दैट ओके यू शुड बी स्मार्ट इनफ बाय द लुक। Attractive doesn't mean that you are handsome or the beautiful. Attractive doesn't mean that you are going to cast the impression on the people by your appearance. Doesn't mean. Attractive, awesome का मतलब ये नहीं कि बहुत जबरदस्त हो आप लोग, नहीं। ये फॉर्मूला है कि if you want to get success in this arena, if you want to get okay achievements in this world, we need to be attractive. Attractive means कि हम अपने स्मार्ट हैं अपने काम के प्रति। अगर हम स्मार्ट हैं अपने काम के प्रति तो हम अपने आप ही अट्रैक्टिव हो जाते हैं, ओसम हो जाते हैं। और जब हम अट्रैक्टिव और ओसम हो जाते हैं तो हम सेलेबल हो जाते हैं। आज आई जो फोन है आपका 16 का बड़ा जमाना है, चला है, जानते हैं आप लोग? एप्पल का फोन लॉन्च हुआ है ना, 16, हाँ, लगभग 1.5 लाख से ऊपर का है। अब क्यों है उसकी वो वैल्यू, क्यों है उसकी? ब्रांड है, वैल्यू है, वो अट्रैक्टिव है, ओसम है। जब अट्रैक्टिव और ओसम हो जाती है तो उसकी डिमांड कितनी हो जाती है? बहुत ज्यादा, तो वो सेलेबल हो जाता है। इसी तरीके से हम एक प्रोडक्ट हैं, हम अपने आप को प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करते हैं अपने आप को, क्योंकि जब कंपनियां उठाएंगी, जब नौकरी लगेगी, एक मार्केट होता है, पूरा कंपटीशन में बैठते हैं तो बेस्ट को निकाल के लेके जाते हैं। तो हम एक प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट के तौर पे जब तक हम अट्रैक्टिव और ओसम नहीं रहेंगे हम सेलेबल नहीं हो सकते। अगर सेलेबल बनना है, सेलेबल का मतलब वैल्यू अगर आपने अचीव करनी है तो भैया आपको फोकस करना पड़ेगा। और ये आएगा कैसे? ब्रांड, तो कहते हैं ब्रांड क्या होता है? ब्रांड इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, ऑसम एंड सेलेबल। और जब सेलेबल कोई चीज होगी तो ब्रांड बनता है, और ब्रांड बनता है तो उसके अंदर क्वालिटीज होती है। और एक छोटी सी बात और मैं अपनी बोल करके अपनी वक्तव्य को विराम देना चाहूंगा, वो ये है कि हाँ, इस दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर there are the two qualities or the two groups. One is 16% और एक है 84 का। 84 के ज्यादा है तादाद है लोगों की जो हमेशा रोते रहते हैं, जॉब्स नहीं है, बुराई है, समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं, बहुत ज्यादा है, नौकरियां नहीं लगती, प्रॉब्लम नहीं है, सक्सेस नहीं मिल पा रही, अचीवमेंट्स नहीं है, और रोते रहेंगे। समस्याएं उनके लिए हमेशा खड़ी हुई हैं। एक 16% लोगों की है, वो चैंपियन थे, वो चैंपियन हैं, वो हमेशा ही चैंपियन रहेंगे। उनके लिए कभी भी कोई वक्त आ जाए, उनके लिए ना तो जॉब्स की कमी होती है, ना उनके लिए कोई दिक्कतें रहती हैं। क्यों?
उनके पास एक स्किल सेट होता है। अब जो 84% वाले जो लोग रोते हैं, वो क्यों रोते हैं? ना तो उनके पास एप्टीट्यूड होता, ना उनके पास एटीट्यूड होता, ना उनके पास स्किल सेट होता, ना उनके पास कोई क्वालिटीज होती। और जब बंदे के पास कोई क्वालिटी ही नहीं होगी तो ब्रांड कहां से बनेगा? जो 16% लोग हैं वो उनके पास उनकी उच्च क्वालिटी की कम्युनिकेशन स्किल है, उच्च क्वालिटी का एप्टीट्यूड है, उच्च क्वालिटी की उनके अंदर ONQs है, उनके पास स्किल सेट पूरा आ चुका है, तो वो जहां भी जाएंगे वो लोग छा जाएंगे। उनके लिए मंदी शब्द नाम की कोई चीज नहीं है कि मंदी आई हुई है, दिक्कतें आई हुई हैं। तो मेरा आपसे यही आग्रह रहेगा, मेरा आपसे यही सजेशन रहेगा कि ब्रांड बनो आप लोग। आप 16% कैटेगरी में आइएगा, क्योंकि 84% लोगों की कोई कदर नहीं है, ना पहले कदर थी, ना आज है, ना कभी होगी। अगर अचीव करना है, कुछ जिंदगी में कुछ करना है, तो आप 16% कैटेगरी के अंदर आइएगा। और हाँ, इस एज के अंदर बेसिकली मैं एक बात और मैं आपको बता देना चाहूंगा, आई लाइक टू ऐड वन थिंग हियर एज वेल, कि 92, ये सर्वे है, 92% अनमैरिड लड़के और लड़कियां अपने आप को अट्रैक्टिव, ऑसम एंड शेलेबल समझते हैं। समझ रहे हो? एक मुगालते में जीते, एक बहम में जीते हैं कि हम ट्रेंडी हैं, बट ऐसा नहीं है। जब यहां से निकलने के बाद जब हम तलाश करते हैं करियर की, तो जो कंपनीज होती हैं वो 84% लोगों को रिजेक्ट करके बाहर फेंक देती है। ओनली 16% लोग ही उनकी नजर में अट्रैक्टिव, ऑसम, शेलेबल है, और वही लोग ब्रांड। अब आपको ब्रांड बनना है, 60% कैटेगरी में आना है, तो मर्जी आपकी है। 84 में रहूंगा।